गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। एक बार फिर से हम इंग्लिश की क्लास में इकट्ठे हुए हैं और आज हम पढ़ेंगे एन एलियन हैंड बुक का सेकंड चैप्टर ब्रिंगिंग अप करी। ब्रिंगिंग अप करी सेकंड चैप्टर है, ब्रिंगिंग अप करी एन एलियन हैंड का। इसमें क्या है, ये एक करी जो है हाथी का बच्चा है। जो इसका ऑथर है, ऑथर का नाम है धन गोपाल मुखर्जी। उसके पास आया है। ये जब इसके पास आया है तो ये 5 महीने का है। थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मैं पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर मैं आपको हिंदी में समझाऊंगी। वर्कशीट डाली जाएगी, जो भी वो सब काम तुम्हें कॉपी में करना है, ठीक है। करी द एलिफेंट वॉज 5 months ओल्ड when he was given to me to take care of. I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tip top. यानी लेखक कह रहा है जब करी मुझे मिला तो मैं 9 साल का था और 5 महीने का था, और धीरे धीरे वो उसके साथ पलने बढ़ने लगा और करी के ऊपर ये पीठ पर बैठता था, लेकिन उसको अपने पाँव होते ना टोस, उन पर यूँ खड़े होना पड़ता था। उस पर चढ़ने के लिए ऐसे खड़े होकर फिर उसके ऊपर वो बैठता था। He seemed to remain that high for nearly 2 years. We grew together. That is probably why I never found out just how tall he was. He lived in a pavilion. पवेलियन यानी एक टेंट या तंबू सा होता है, उसमें रहा करता था, क्योंकि हाथी तो बड़े होते हैं, छोटे उसमें तो रह नहीं सकते घर में, तो एक बड़ा सा तंबू या टेंट लगाया गया था उसके लिए, उसमें वो रहता था। अंडर अ थैच्ड रूफ विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प्स सो दैट इट कुड नॉट फॉल इन when Curry bumped against the poles as he removed about. और वो जब उसमें चलता था टेंट में तो उसके जो बम्प्स थे वो कई बार उसके पोल से लग जाते थे, जो खंबे खड़े किए गए थे, लेकिन वो गिरते नहीं थे क्योंकि वो पेड़ की मजबूत लकड़ी से बनाए गए थे। Curry enjoyed his morning bath in the river much. He would lie in the water for a long time. On coming out, he would squeal with pleasure. After the bath, the author would leave him on the edge of the jungle. He would himself go into the forest to get some twigs for the elephant's dinner. It took a long time. First, the author would sharpen his hatchet, which took half an hour. Then the author had to climb trees to get the most delicate and tender twigs. Doing all this naturally took a long time. Curry and the author were good friends, but Curry once pushed him into the stream. It was to save the life of a boy. He saw a boy lying on the bottom of the river. He dived and pulled the body of the drowning boy to the surface. However, the author was not a swimmer, so he could not come ashore. The current began to drag him down. Curry saw it. He came fast into the river. The author caught his trunk. He pulled both the author and the boy ashore. Curry was like a baby. Like a baby, he had to be told when he was naughty. He developed a taste for bananas. He began to steal them. Large plates of fruit were kept on a table in the dining room. Curry would put his trunk through the window to the bananas. In one attempt, he would take them all. He would then quietly go to his pavilion. There he ate the bananas at peace without being seen. At last, the author caught him stealing. When he was scolded, he understood like a baby and did not steal again. Like babies, he was a quick learner. Curry learnt Mali after 3 lessons, but it took him 3 weeks to learn Dhat. Dhat was the command to sit, while Mali was the command to walk. These commands were taught to him just as one teaches a child. The teaching of master call to an elephant is a difficult thing. An elephant generally takes 5 years to learn it. Yet, it is the most important signal for an elephant to learn. It is so because it helps an elephant to save his master's life. Sometimes they are lost in the jungle and there is no way out. Then the master makes a strange, hissing, howling sound in the elephant's ear.
A trained elephant understands it and at once pull out the tree in front of him. This frightens all the animals away. Even the tiger is frightened. The elephant goes on pulling down the trees one after the other. Thus a path is made out of the forest. करी एक हाथी था। 5 माह की उम्र में वो लेखक के पास आया। कारी एक बड़ी खुली जगह यानी टेंट या मंडप में रहता था। इसके ऊपर छप्पर था जो पेड़ के मोटे मोटे बंठों से कह सकते हैं या मोटे मोटे लट्ठों से टिका था। अपने बाड़े में घूमता हुआ कारी खंभों से टकरा जाता था, फिर भी ये खंभे टूटते नहीं थे। ऐसा इसलिए था कि ये पेड़ों के मोटे बंठों से या लट्ठों से बना था। कारी को नदी में अपना प्रातः स्नान बहुत अच्छा लगता था। वो पानी में बड़ी देर तक लेटा रहता था। बाहर आने पर वो खुशी से चिंघाड़ता था। नहाने के बाद लेखक उसे जंगल के किनारे पर छोड़ देता था और लेखक खुद हाथी के भोजन के लिए यानी कारी के भोजन के लिए शाखाएं या टहनियाँ जंगल में लेने के लिए चला जाता था। इसमें काफ़ी समय लगता था। पहले लेखक अपनी कुल्हाड़ी तेज करता था जिसमें आधा घंटा लग जाता था। फिर लेखक को वृक्षों पर चढ़ना होता था ताकि सबसे नाजुक और नर्म शाखाएं या टहनियाँ उसे मिल सकें कारी के लिए। ऐसा सब कुछ करने में ऑब्वियसली स्वाभाविक रूप से पूरा दिन लग जाता था या बहुत समय लगता था। कारी और लेखक अच्छे मित्र थे, पर कारी ने एक बार उसे नदी में धक्का दे दिया, यानी जो लेखक है उसको धक्का दे दिया नदी में, लेकिन जानबूझ के नहीं दिया। वो क्यों धक्का दिया? उसने एक लड़के की जान बचाने के लिए ऐसा किया। लेखक ने नदी के तल पर एक लड़के को पड़े देखा। लेखक जो था उसने देखा कि नदी के किनारे पे तल पर ही पानी पर एक लड़का पड़ा हुआ है। तो लेखक जो था उसने उसको बचाने के लिए, लड़के को बचाने के लिए नदी में गोता लगाया और डूबते हुए लड़के के शरीर को सतह पर खींच लाया। मैं थोड़ा सा आगे को खींच लाया, पर लेखक जो था वो स्विमर नहीं था, वो तैराक नहीं था, उसको स्विमिंग नहीं आती थी, अतः वो किनारे पर नहीं आ पाया। बहाव उसे नीचे धकेलने लगा। नदी में तो बहुत बहाव होता है, तो बहाव जो था लेखक और लड़के को दोनों को पानी जो था वो नीचे की तरफ धकेलने लगा। कारी ने ये देख लिया। बस वो बहुत तेज़ यानी कारी बहुत तेज़ दौड़ता हुआ नदी में आया। लेखक ने उसकी सूंड पकड़ ली, यानी उसकी जो ट्रंक जो है वो पकड़ ली। वो लेखक और लड़के दोनों को खींचकर तट पर ले आया। कारी एक बच्चे की तरह था। बच्चे की शरारत करने पर उसे बताना पड़ता था कि तुम ये गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो। उसे केलों का स्वाद अच्छा लगा, तो हाथी तो केला ही खाता है ना, तो कारी को भी जब केले दिए गए तो उसे उसका स्वाद बहुत अच्छा लगा। उसने उन्हें चुराना प्रारंभ कर दिया, यानी उसने अब केलों को चुराना शुरू कर दिया। बच्चों की तरह जो चीज़ उसे अच्छी लगी, फलों की बड़ी सी प्लेट डाइनिंग टेबल होती है जिसपे बैठकर खाना खाते, उस पर रखी रहती थी डाइनिंग रूम में। कारी जो था वो बाहर खिड़की से घर में तो आ नहीं सकता था क्योंकि तो बाहर टेंट में रहता था, तो बाहर खिड़की से वो अपनी ट्रंक को, अपनी सूंड को डालता था और पूरा केले का गुच्छा एक ही बार में अपनी सूंड के ज़रिए से टेबल पे से उठा लेता था और खिड़की से बाहर निकाल लेता था और फिर जाकर अपने टेंट पे बड़ी शांति से उसको खाता था कि कोई उसे देख ना रहा हो। आखिरकार लेखक ने उसे चोरी करते हुए पकड़ लिया। जब उसे डांटा गया तो वह एक बच्चे की तरह समझ भी गया। फिर उसने कभी चोरी नहीं की। बेटा समझाना पड़ता है ना, तुम लोग को भी मम्मी पापा हम लोग समझाते ये गलत है, ऐसा मत करो, तो तुम लोग सीख जाते हो। ऐसी इसको कारी को भी समझाना पड़ा कि चोरी नहीं करनी है, ये गलत है, और धीरे धीरे वो भी सीख गया। फिर बच्चों की तरह वो जल्दी सीख जाता था। कारी ने 2 शब्द सीखे, माली और धत। जो माली शब्द था वो 3 बार में सीख लिया, लेकिन जो धत शब्द था उसको सीखने में उसको 3 हफ्ते लगे, 3 वीक्स लग गए। माली का मतलब था बैठना और धत का मतलब होता था माली का मतलब था चलना और धत का मतलब था बैठना। यानी जब वो धत कहते थे तो वो बैठ जाता था, जब वो माली कहते थे
तो वो चलने लगता था। तो माली तो उसने कुछ ही मिनटों में सीख लिया, कुछ ही 3 सबक में, लेकिन धत को सीखने में उसको 3 हफ्ते लग गए। कई बार ऐसा होता है ना, हमारे साथ भी ऐसा होता है, डिफ़िकल्ट चीज़ हमें सीखने में टाइम लग जाता है और इसी चीज़ हम जल्दी से सीख जाते हैं। तो धत और माली 2 शब्द थे। धत का मतलब था बैठने की आज्ञा उसको दी जाती थी, जब धत बोलते थे तो बैठ जाता था, और जब माली कहते थे तो वो चलने लगता था। ये आज्ञाएँ उसे इसी तरह सिखाई गई जैसे कोई अपने बच्चे को पढ़ाता है। जैसे हम डॉग्स पालते हैं ना घर में, उन्हें सिखाते ना सिट डाउन, स्टैंड, नो, यस, हेलो सिखाते ना, तो सीख जाते। ऐसे ही इसको करी को भी सिखाया गया। हाथी को मास्टर कॉल सिखाना कठिन काम है। अब वो ये एक जनरल बात कर रहे हैं, करी की तो हमने देख लिया बात, एक समरी हमने देख ली, लेकिन हाथी के बारे में वो ये कह रहे हैं कि हाथी जो है उसको कुछ सिखाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इसे सीखने में हाथी को प्रायः 5 साल लग जाते, कुछ भी चीज़ सिखाने में, यानी कंप्लीट ट्रेनिंग देने में हाथी को लगभग 5 साल लग जाते हैं। फिर भी यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण संकेत है। लेकिन अभी जो तुम्हें मैं बताने जा रही हूँ, जो लेसन में दिया है, सबसे इम्पॉर्टेंट संकेत है वो क्या है, जो हर हाथी को सीखना होता है, जो भी किसी के अंडर में हाथी रहता है उन सबको सिखाया जाता है। ऐसा इसलिए कि इसके द्वारा हाथी अपने मालिक की जान बचा सके। यानी कुछ चीज़ हाथी को ऐसी सिखाई जाती है जब कहीं उसका मालिक कुछ फंस जाए तो हाथी उसकी जान बचा सके। कभी कभार वो जंगल में खो जाते हैं हाथी और उसका मालिक, और बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। जंगल तो ऐसे होते हैं ना, घने होते हैं और हर तरफ से जंगल तो एक सही होता है, तो बाहर निकलने का कई बार रास्ता नहीं मिलता है। तो हाथी को सिखाया जाता है कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, जब ऐसे उसमें फंस जाए, तो उसे बाहर कैसे निकलना है। तब मालिक जो होता है वो हाथी के कान में एक अजीब से फुसफुसाने के तरीके से या फुफकारने और चीखने की आवाज़ करता है। जब कभी ऐसा होता है ना, एक हाथी और मालिक जंगल में फंस जाते हैं, तो मालिक जो है वो उसके कान में, हाथी के कान में फुफकारता है या चीखता है। तो इससे क्या होता है कि उसको जो ट्रेंड हाथी होगा उसको पता चल जाएगा कि हम खो गए हैं, हम जंगल में खो चुके हैं। तो उसको पता लग जाएगा कि हम खो गए, मालिक ये कह रहा है हम खो गए हैं, अब हमें अपना रास्ता खोजना है बाहर निकलने के लिए। प्रशिक्षित हाथी इस आवाज़ को समझता तुरंत अपने सामने वाले पेड़ को उखाड़ फेंकता है। जैसे ही उसका मालिक उसके कान में आवाज़ करता है, वो समझ जाता है कि हम खो गए, अब हमें रास्ता नहीं मिल रहा है, तो जो पेड़ उसके सामने होता है उसको एकदम उखाड़ के फेंक देता है। और जब वो ऐसा करता है, पेड़ उखाड़ के फेंकता है, तो जितने जानवर हैं उससे डरने लगते हैं, यहाँ तक कि टाइगर, चीता भी उससे डर जाता है। हाथी एक के बाद एक पेड़ गिराता चलता, बहुत ताकत होती है हाथी में, तो एक के बाद एक पेड़ को उखाड़ता और गिराता चलता है। इस प्रकार जंगल के बाहर जाने का रास्ता वो बना लेता और अपने मालिक की वो जान बचाता है। तो हमने देखा एक हाथी के बारे में, जैसे लास्ट चैप्टर में हमने एक टाइनी टीचर पढ़ा था ना चींटियों के बारे में, ऐसे हमने इसमें हाथी के बारे में पढ़ा कि हाथी बहुत समझदार जानवर होता है, बहुत ताकतवर होता है। उसको ट्रेन करने में 5 साल लग जाते हैं, पूरी ट्रेनिंग देने में, लेकिन हाथी को जब ट्रेन कर देते तो वो अपनी और अपने मालिक दोनों की जान बचा सकता है। बेटा ये पूरा चैप्टर घर पे ज़ोर ज़ोर से बोलकर सभी बच्चे पढ़ेंगे, ये होमवर्क है तुम्हारा। ज़ोर ज़ोर से बोलकर पढ़ेंगे तो चैप्टर समझ में आएगा, दूसरा में इंग्लिश बोलनी भी आएगी, इंग्लिश लिखनी आएगी। तो ज़ोर ज़ोर से बोल करके इस चैप्टर को पढ़ेंगे, और जो तुम लोग को वर्कशीट डाली जाएगी, जो भी क्लास वर्क दिया जाएगा उसको करना है। वर्ड मीनिंग्स दिए जाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स दिए जाएंगे, वो मैं इसी ग्रुप पर डाल दूँगी, वो सब तुम्हें करना है, ठीक है ना। चैप्टर मैंने समरी बता दी, लेकिन ज़ोर ज़ोर से बोलकर तुम्हें खुद पढ़ना है, ठीक है। अपना ध्यान रखना है, घर में सेफ रहना है। ओके।